السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ میں غار میں داخل ہوا تو مجھے وہاں صرف چند چیزیں ملی۔ ایک مرگ چھالا جو اتنی خستہ اور خراب ہو چکی تھی کہ جسے چھوؤں تو ٹوٹ کر بکھر جائے، پانی کا ایک کلسا جو جوں کا توں موجود تھا، البتہ اس پر زمانے کی گرد جم چکی ہے۔ ہاں، گھپا میں ایک پانی کا کنڈل بھی موجود تھا اور 2 کھڑاؤں پڑی ہوئی تھی، اور میں نے وہ کھڑاؤں اپنے پہن میں پہن کر دیکھی تو وہ مجھے بالکل ٹھیک تھی۔ وہ ان کی لکڑی اب اتنی بوسیدہ ہو چکی تھی کہ جو ہی میرے پاؤں کا وزن ان پر پڑا تو وہ ٹوٹ گئیں، لیکن وہ میرے پاؤں میں بالکل ٹھیک تھی۔ کنڈل میں بھی میرے اٹھانے سے بالکل ٹوٹ گیا اور صرف پانی کا کلسا رہ گیا، جسے میں اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ گو یہ چیزیں میری نہیں تھی، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میرا ہو، اور ان 4 چیزوں کے علاوہ گھپا میں کچھ نہیں تھا۔ آ رانی شردا، میں تجھے اس کلسا کا درشن کراؤں۔ رانی شردا اٹھ گئی، حالانکہ ان تمام باتوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پنڈت گرداری لال کی عقیدت کی وجہ سے اس نے کلسے کے درشن کر لیے۔ کلسے کو دیکھ کر نہ جانے کیوں رانی شردا کے ذہن میں ایک لہر سی دوڑ گئی، ایک عجیب سا احساس۔ اس نے پہلے بھی کبھی اس کلسے کو دیکھا ہو، لیکن پھر یہ احساس ایک لمحے میں مفقود ہو گیا۔ پنڈت گرداری لال البتہ سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ میرے جیون سے کیا تعلق رکھتا ہے، میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ بہر صورت میں ان گپاؤں سے واپس آ گیا، اور اس کے بعد میں اپنے گیان کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر اس گپا کا کیا راز ہے۔ تب رانی شردا میرے ذہن میں تلک دیو ابھرا، اور وہ تلک دیو کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ اسے دیکھ کر میرے من میں جو گرا پڑ گئی تھی، اس کی گتھیاں الجھتی سلجھتی رہیں، بالآخر پھر تلک دیو تک پہنچ گئیں، اور اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلک دیو کا آخر ان ساری باتوں سے کیا تعلق ہے۔ مہاراج، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ رانی شردا نے پوچھا۔ نہیں رانی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرا گیان کہتا ہے کہ اس واقعے کا تعلق کسی بھی طرح تلک دیو سے ہو، لیکن اس میں تلک دیو کے جیون کے لیے کوئی ایسی بات نہیں جسے خطرناک کہا جا سکے۔ بس میں من کی یہی شانتی چاہتی تھی، رانی شردا نے کہا۔ تو پھر اپنے مانت کو شانت رکھ شردا، تیرے لیے چنتا کی کوئی بات نہیں، میں موجود ہوں، اور پھر اس مسئلے کو یوں ہی نہ چھوڑ دوں گا۔ ابھی میں ایک بڑا جاپ کروں گا، یہ جاپ 39 دن کا ہوگا، لیکن یہ میں اس سمے شروع کروں گا جب اس کا صحیح وقت ہوگا۔ چنانچہ اس جاپ کے بعد یہ ممکن ہے کہ مجھے بہت کچھ معلوم ہو جائے۔ رانی شردا نے گردن ہلا دی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، مہاراج، رات بہت بیت گئی ہے، ہمیں ابھی دریا پار کرنا ہے۔ یوں بھی یہ موسم ایسا ہے کہ دریا کے پانی کا بہاؤ کافی تیز ہے، چنانچہ اب میں آگیا چاہتی ہوں۔ بھگوان تجھے سکھی رکھے شردا، پنڈت گرداری لال نے کہا، اور رانی شردا مندر سے نکل گئی۔ شاہی کشتی کے کشتی بان دریا کے کنارے بیٹھے رانی شردا کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ شردا اپنے بچے کو کاندھے سے لگائے باندیوں کے ساتھ کشتی کے نزدیک پہنچ گئی۔ باندیاں اپنی کشتیوں میں بیٹھ گئیں۔ دریا میں کافی شور ہو رہا تھا، پانی کی روانی کچھ اور بڑھ گئی، اور ملاحوں کے چہرے متفکر تھے۔ کیا بات ہے، تم لوگ کچھ پریشان ہو؟ رانی شردا نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں ہے رانی جی، بس ندی کا بہاؤ کچھ تیز ہے، یوں لگتا ہے جیسے پہاڑوں پر کہیں بارش ہوئی ہو، اور بارش کا پانی اکٹھا ہو کر ندی میں اضافے کا باعث بن گیا ہو، کشتی بانوں نے جواب دیا۔ کیا اس باڑ میں کشتی کا کھیلنا خطرناک تو نہیں؟ رانی شردا نے پوچھا۔ نہیں رانی جی، ابھی باڑ اتنی تیز نہیں، ہم اطمینان سے پہنچ جائیں گے، کشتی بانوں نے جواب دیا۔ وہ تجربے کار ملاح تھے، اور کشتی کی باڑ ان کے لیے کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کشتی دھکیل کر پانی میں ڈال دی۔ رانی شردا کشتی میں سوار ہو گئی، لیکن ابھی کشتی تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ پیچھے سے پانی کا ایک خوفناک ریلا آیا اور کشتی اس پر ڈول گئی۔ رانی نے پوری قوت سے بچے کو سینے سے بھینچ لیا، پھر وہ متوحش لہجے میں ملاحوں سے بولی، یہ کیا بات ہے؟ کیا کشتی خطرے میں ہے؟
मलाहों के चेहरे पर भी तशवीश के आसार नमूदार हुए और उन्होंने किसी कदर मुतफक्कर लहजे में कहा, नहीं रानी जी, अभी कोई बड़ा खतरा तो नहीं, लेकिन आपने महसूस किया होगा कि पानी की एक बड़ी बाढ़ इस पानी में और शामिल हो गई, इसलिए कश्ती काफी परेशानी में फंस चुकी है। मलाह ने जवाब दिया, मैं तुम लोगों से पहले ही पूछ रही थी कि अगर कोई खतरा हो तो इस समय कश्ती को पानी में ना डालो, मगर तुम लोगों ने अपनी हद से ज्यादा तजर्बेकारी का सबूत देते हुए मुझे कष्ट में डाल दिया। हम क्षमा चाहते हैं रानी जी, लेकिन आप देख रही हैं इसमें हमारा कोई दोष नहीं, पानी अचानक ही आया है, मलाह ने जवाब दिया। रानी श्रद्धा खामोश हो गई, लेकिन उसकी निगाहें खौफजदा अंदाज में पानी को देख रही थी, जिसमें बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे और पानी पूरी कुव्वत से बहता हुआ आ रहा था। कश्ती की रफ्तार मलाहों के बात से बाहर होती गई और वो तेज रफ्तारी से बहने लगी। मलाहों के चेहरे पर कुछ और खौफ के आसार नमूदार हो गए। रानी जी, एक और परेशानी आ गई, अगर आप हमें जान की माफी दें तो बताएं। बताओ, रानी श्रद्धा खौफजदा लहजे में बोली। बाढ़ अब इतनी तेज हो गई है कि कश्ती को अब किनारे की तरफ काटना बहुत मुश्किल है। क्या मतलब है इस बात का? क्या कश्ती किनारे तक नहीं पहुंच सकेगी? रानी श्रद्धा ने कहा, नहीं देवी जी, कश्ती किनारे तक पहुंच जाएगी, लेकिन हम उसे काटेंगे नहीं। क्या मतलब? बादबानों ने काम करना छोड़ दिया है। पतवार इस तेज भाव में हमारे बाजुओं का साथ नहीं दे सकते, चुनाचा हमें एक ही तरकीब करनी है। वो क्या? रानी श्रद्धा ने कपकपाते लहजे में पूछा। हम कश्ती को बाएसिमत आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। ये अपनी रफ्तार से जिस तेजी से आगे बढ़ेगी, हम उस वक़्त उसे पूरी कुव्वत से किनारों की तरफ काटेंगे। यूं आहिस्ता आहिस्ता इसका रुख बदलता जाएगा और कश्ती के टूटने का खतरा भी नहीं रहेगा, मलाह ने जवाब दिया। हाय राम, तो क्या कश्ती टूटने का भी खतरा है? रानी श्रद्धा ने पूछा। देवी जी, भगवान पर भरोसा करें, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, मलाहों ने जवाब दिया। उनके चेहरे धुआं धुआं हो रहे थे और वो खुद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला थे। और सच्ची बात तो ये कि उनमें से चंद को तो अपनी मौत का भी ख्याल नहीं। वो तो बस ये सोच रहे थे कि अगर रानी श्रद्धा किसी हादसे का शिकार हो गई तो उनके खानदानों तक की खैर नहीं। और वो अपने जिस्म की पूरी कुव्वत से कश्ती को किनारे की जानब काट रहे थे, लेकिन बदकिस्मती उनकी कि उनकी कोई कोशिश कारगर ही नहीं होने दे रही थी। कश्ती की रफ्तार तूफान होती जा रही थी और जो जो वो आगे बढ़ती गई उसकी रफ्तार तेज से तेज हो गई। वो पानी पर किसी तिनके की तरह डोल रही थी। बादबानों से खास तौर से खतरा था। अगर बादबानों में हवा भर गई और कश्ती एक तरफ को हो गई तो पानी की तेज धार उसे उलट देगी। चुनाचा मलाहों ने पहली कोशिश यही की कि बादबान उतार दिए जाएं। उस तेज रफ्तार सफर में बादबानों का उतारना भी आसान काम नहीं। चुनाचा उन्होंने लंबे लंबे चाकुओं से बादबानों के रस्से काटे और बादबान हवा में उड़ता हुआ न जाने कहां से कहां पहुंच गया। कश्ती की बरक रफ्तारी से आन की आन में मीलों दूर तक ले गई और कश्ती के बारे में यह नहीं कहा जा सकता था कि वो असल जगह से कितनी दूर निकल आई। मलाहों की हर तदबीर नाकाम हो गई और जब उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट गई तो मलाह हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रानी जी, भगवान की सौगंध, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हमें क्षमा कर दें। हमने अपने नमक का हक अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रानी श्रद्धा उनके चेहरों की सरासीमगी से उनका मकसद समझ गई और उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने खूबसूरत बच्चे की जानब, और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। हाय राम, क्या तिलक देव इतनी सी उम्र के लिए इस संसार में आया? और फिर उसने दर्द भरे लहजे में कहा, हाय भगवान, अगर तेरी दिया हो जाए तो मैं अपना जीवन अपने बच्चे को देने के लिए तैयार हूँ। तू मेरा जीवन छीन ले और मेरे तिलक देव को मेरा जीवन दे दे। रानी श्रद्धा ने दर्द भरी आवाज में कहा और बांदियों की चीखें निकल गईं और वह सब की सब अपनी जिंदगी से खौफजदा थी। लेकिन रानी श्रद्धा की दर्द भरी बात सुनकर वो अपना दुख भूल गईं और उन सब की आंसुओं से आंसू रवां हो गए। मलाह जी छोड़ बैठे थे। कश्ती अब कोई दम की मेहमान थी और कभी कभी वो पूरी की पूरी घूम जाती। जिस वक्त वो घूमती तो बांदियां एक दूसरे पर गिरती, लेकिन अब बांदियों ने रानी श्रद्धा के गिर्द अपना हल्का बना लिया ताकि रानी श्रद्धा इधर से उधर ना गिरने पाए। पानी की एक तेज लहर ने कश्ती को बहुत ऊंचा उठा लिया। मलाहों को यकीन हो गया कि उसके बाद कश्ती नीचे आएगी तो फौरी तौर पर या तो बीच में से टूट जाएगी या फिर डूब जाएगी।
वो अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ना जाने क्या हुआ, ना जाने क्या हुआ। कश्ती की रफ्तार एकदम कम हो गई। यूं लगता था जैसे वो किसी चीज़ पर चढ़ गई हो। लहरों के जो हलकोरे कश्ती के नीचे महसूस होते रहे थे, यक लख्त थम गए, और लोग जो अब तक किसी भी लम्हा मौत के मुंतज़िर थे, उस अचानक सकूत और खामोशी पर इस अंदाज में साकत रह गए जैसे मतवक्का हो कि अब जिंदगी का वो आखिरी लम्हा आन पहुंचा जो उन्हें मौत के गौश में पहुंचा देगा और वो जिंदा ना बढ़ सकेंगे। ये खामोशी और सकूत मौत की आमद के इस्तकबाल का सकूत है, लेकिन मौत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कब आएगी कोई इसकी निशानदही नहीं कर सकता। उन लोगों के साथ भी यही हुआ, और जब वो जिंदगी की तरफ दौड़ रहे थे तो मौत उनका ताक़ुब कर रही थी, और जब वो मौत से शिकस्त खाकर उसके पहलू में जाने के लिए तैयार हो गए तो अचानक जिंदगी ने मौत के सामने फौलादी दीवार बना दी। मलाहों ने आंखें खोलकर देखा तो कश्ती खुश्की पर चढ़ी हुई थी। ये कैसी खुश्की थी और कौन सा साहल था, और उसके बारे में एक तारीख और तूफानी रात में मलाह कुछ नहीं बता सकते थे। लेकिन ये यकीन करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आई कि कितनी खुश्की पर है, और कश्ती खुश्की पर है, और वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस साहल को देख रहे थे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन सी जगह है। बहर सूरत जगह कोई भी हो, लेकिन चंद साथ के बाद वो खुशी से उछल पड़े, और उस वक्त जब उन्हें ये यकीन हो गया कि ये दर हकीकत कोई वहमा नहीं बल्कि वो साहल से आ लगे हैं, और वो तेज रफ्तार वरिया और साहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रानी शरदा भी आंखें बंद किए अपने बच्चे को सीने से भींचे बैठी हुई थी, और उसे इस बात का शदीद दुख था कि वह अपने नौनहाल की बहारें ना देख सकी और इस हादसे का शिकार हो गई। लेकिन उसे भी जब कुछ सकूत महसूस हुआ तो उसने आंखें खोल दी और मलाह को आवाज दी, क्या हुआ? ये अचानक कश्ती का बहना कैसे बंद हो गया? बधाई हो महारानी जी, बधाई हो, भगवान ने हमारा जीवन बचा लिया, मलाह ने खुशी से कहा, और रानी शरदा भी बच्चों की मानद खुश हो गई। सच? और उसने तहय्युर भरे लहजे में पूछा, हाँ रानी जी, भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना हम तो मौत के बाद भी इस बात पर शर्मिंदा रहते कि रानी जी को हमारे हाथों तकलीफ पहुंची। अब फजूल बातों से परहेज करो, जल्दी से कश्ती से उतरो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, शरदा ने कहा, और उसके नजदीक बैठी बांदियां चौंक पड़ी। सब के सब मौत के खौफ का शिकार थे, और चंद साइद के लिए वो सब हिफ्ज़ो मरातब भूल गए। बांदियां ये भी भूल गईं कि वो रानी के साथ सफ़र कर रही हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या है। मौत बड़ी खौफनाक चीज़ है, और ज़िंदगी भर आदमी इक़्तिदार के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन जब मौत नज़दीक आ जाए तो सारे इक़्तिदार, सारे हिफ्ज़ो मरातब समुंदर में बह जाते हैं। बांदियों का भी इस वक्त तक यही हाल था, लेकिन जब उन्हें नई ज़िंदगी की उम्मीद हो गई तो उन्हें यह भी ख्याल आया कि रानी शरदा की खिदमत ही उनका जीवन है, और अगर उन्होंने रानी शरदा के लिए कुछ ना किया तो फिर जीवन में भी उनके लिए कांटे ही कांटे होंगे। चंद बांदियों ने जल्दी जल्दी खुश्की पर कूद कर रानी को संभाला। रानी ने अपने बच्चे को सीने से जुदा ना किया। एक बांदी ने उसे लेने की कोशिश की तो रानी ने उसे मना कर दिया, नहीं, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूंगी, भगवान ने उसे दोबारा मेरे पास भेजा है, तुम मुझे ऐसे ही सहारा देकर उतारो। और बांदियों ने उसे सहारा देकर नीचे उतार दिया। मलाहों ने कश्ती को कुछ और ऊपर खींच लिया। ये तो बाद में देखने की बात थी कि ये कौन सी जगह है, कौन सा साहल है। फिल वक्त तो उन्हें जिंदा बच जाने की बेहद खुशी थी। कश्ती को महफूज जगह लाने के बाद दूसरे कामों में मसरूफ हो गए। रानी बांदियों के साथ जा बैठी, और वो अब तक अपने बच्चे को सीने से भींचे हुए आंखें बंद किए बैठी थी। बांदियों ने उसके गिर्द हल्का कायम कर लिया। मलाह इधर उधर देखते रहे, और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है। कश्ती तो दरिया के बीचों बीच बह रही थी, फिर ये साहल अचानक कहाँ से आ गया, और साहल भी ऐसा कि इतना ढलान था कि कश्ती उस पर बाआसानी चढ़ गई, वरना दरिया के साहल तो ना हमवार थे। वो रात की तारीकी में आगे बढ़े तो उनके कदमों के नीचे हसीन सब्जाजार आ गए। घास का ये मैदान दूर तक चला गया। गो थोड़ी सी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो किसी तकलीफ का शिकार हो जाते। फिर उन्होंने दरख्तों की कतारें देखी। दरख्त सरसब्ज़ व शादाब थे। यह हसीन जगह उनकी समझ से बाहर थी। इससे पहले उन्होंने कभी इस हसीन जगह को नहीं देखा था। वो दरख्तों के सूखे हुए पत्ते और उस जगह की हालत से यूं लगता था
कि यहाँ इंसानी वजूद नहीं और जो इस जगह को साफ सुथरा करता, लेकिन बहर सूरत ये अनोखी जगह उनकी समझ में बिल्कुल ना आई। काफ़ी दूर तक जाने के बाद जब उन्हें कोई अंदाज़ा ना हुआ तो वापस पलटकर रानी के पास चल पड़े और रानी शारदा के पास पहुंच गए और पूछा, रानी जी, क्या आप इस जगह को पहचानती हैं? नहीं, क्यों, क्या बात हुई? हमारी समझ में तो नहीं आती कि यह कौन सी जगह है, मलाहों ने जवाब दिया। ओहो, रानी शारदा के होंठ सिकुड़ गए। फिर वो बोली, कोई बात नहीं, अगर रात यहाँ बीत जाए तो हम यहाँ बिता लेंगे, सुबह को पता चल जाएगा कि ये कौन सी जगह है, तुम लोग चिंता मत करो। रानी शारदा ने कहा, जो आ गया महारानी जी, और फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम खुद समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यूं करो कि अगर यहाँ खुश्क टहनियाँ मिलें तो उन्हें एक जगह इकट्ठा करके आग जला दो। मुमकिन है यहाँ खतरनाक जानवर भी हों। सारी रात हमें जागना होगा और हम उस समय तक सो नहीं सकते जब तक कि हमें ये मालूम ना हो जाए कि ये कौन सी जगह है। आपने ठीक कहा महारानी जी, मलाहों ने कहा, और फिर वो रानी की मर्जी के मुताबिक काम करने लगे। सारी रात उन्होंने वहीं बैठकर गुजारी। जगह जगह अलाव रोशन कर दिए और मलाह सारी रात अलाव में खुश्क लकड़ियां डालते रहे और मुख्तलिफ चीज़ें हाथों में लेकर पहरा देते रहे कि अगर कहीं से कोई जंगली जानवर निकल आया तो उसकी हिफाजत की जा सके। लेकिन यहाँ किसी जानवर का वजूद नहीं था। सारी रात गुजर गई और सुबह की रोशनी नमूदार होने लगी। पिछली रात का वो खौफनाक सफ़र और फिर वो हादसा जिससे न जाने किस तरह जिंदगी बच गई थी, रानी के असाब पर बुरी तरह असर अंदाज हुआ और वो बैठे बैठे थक गई। लेकिन उसके सीने से गोश्त का जो लोथड़ा चिमटा हुआ था, वो उसमें जिंदगी की हरारत दौड़ रहा था। और औलाद जब माँ की आगोश में हो तो माँ की आगोश कभी थकन महसूस नहीं करती, खास तौर से उस वक़्त जब बच्चा खतरे में हो। सुबह की रोशनी हुई तो मलाह दौड़कर दरिया से पानी ले आए और पानी से रानी ने मुंह हाथ धोया, बाल बाल संवारे, और जब वो तैयार हुई तो बांदियां उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। आप तो राजकुमार को हमें दे दीजिए महारानी, आप थक गई होंगी, अब तो कोई खतरा नहीं। और रानी शारदा ने तिलक देव को अपनी खास खादमा की आगोश में दे दिया। फिर बोली, इसका ख्याल रखना। आप चिंता न करें रानी जी, बांदी ने जवाब दिया। और रानी इधर उधर देखने लगी और फिर उसका मुंह हैरत से खुल गया। पता नहीं कौन सी जगह है, और इससे पहले तो हमने कभी यह जगह नहीं देखी। यूं लगता है जैसे हम काफी दूर निकल आए, रानी शारदा ने कहा। हाँ रानी जी, एक बांदी ने जवाब दिया, लेकिन यह फासला इतना है कि कभी हमने इधर का रुख नहीं किया, दूसरी बांदी ने कहा। हाँ, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और मेरा भी यही ख्याल है कि दूर होने की वजह से हम रास्ते पर भी कभी नहीं आए, रानी शारदा ने फिर जवाब दिया। लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा रानी जी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात की बात दूसरी थी, आप फिक्र ना करें, हम किसी न किसी तरह रास्ता तलाश कर लेंगे और उसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मलाहों ने रानी को यकीन दिलाया और रानी सर हिलाने लगी। सितारे बेनूर हो गए। दो पहाड़ों की ओर से उजाला चमकने लगा। फिर कहीं से टन टन की आवाज़ उभरी और मुझे यूं लगा जैसे अचानक ज़मीन आसमान उलट गए हों। ताहद नज़र फैले हुए पहाड़ एक दूसरे से टकरा रहे हों। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छाने लगा। तभी घंटे की आवाज़ बंद हो गई और दूर से कोई हमें अपनी तरफ आता नजर आया। भगवान नाश करे इस सत्यानाशी का, करोती मध्यम आवाज़ ने बड़बड़ाई और मैं उसकी आवाज़ सुनकर चौंका। मैंने कहा, क्या हुआ करोती? पापी कुबड़ा, वो मनहूस इधर ही आ रहा है, करोती ने दांत नकोस कर कहा और मैंने चौंक कर उधर देखा। गौतम भंसाली ही था और वह अपनी लंगड़ी चाल के साथ उसी तरफ आ रहा था। फिर सुबह भी हो गई, हमें जाना पड़ेगा। कहाँ? शीर्षनु, इस तुम्हें शारदा की कहानी सुनी है तो कल रात तक का इंतजार करना पड़ेगा, करोती ने सर्द लहजे में कहा और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। गौतम अब हमारे पास आ गया था। अचानक ही मुझे अपने पैरों के पास सरसराहट सुनाई दी और मैंने चौंक कर नीचे देखा। एक इंतहाई खौफनाक कोड़ियाला सांप मेरे पैरों के करीब था और इससे पहले कि मैं उससे बचूं, भयानक नाग ने मेरी पिंडली पर मुंह मार दिया। एक हल्की सी चुभन हुई लेकिन मेरे मुंह से जोरदार चीख निकली, जिस पर चौंक कर करोती ने नीचे देखा और फिर उसके होंठ भींच गए। मनहूस कीड़े, महाभारत के दौर के राज लेखक की तारीख में किसी सांप ने उनके पाँव में नहीं काटा था। ये तो गुजरी हुई तारीख का एक साया है।
इनका असल शरीर तो लाखों सदियों के बाद संसार में आने वाला है। ये सांप इनका क्या बिगाड़ सकेगा। आओ अली जी, ये रकाबत का मारा पीछा कहाँ छोड़ेगा। आओ, कोई बात नहीं है कुछ का, और ये तेरा ये राज लेखक तेरा साथ नहीं रह सकेगा। मैं महाराज से कहकर तारीख के इस चोर को पकड़वा दूंगा, तू देखना। गौतम बंसाली ने कहा और वापस मुड़ गया। मेरे पाँव में सांप ने जिस जगह काटा था वहां अब कोई ना निशान तक न था, ना तकलीफ, लेकिन मैं उसकी बात पर गौर कर रहा था। क्या दिलचस्प बात थी, क्या ही दिलचस्प। सदियों पुरानी एक जीती जागती औरत, माफूकल फितरत कुव्वतों की मालिक, जदीद दौर के एक तारीख निगार को मिल गई, और सदियों की तारीख एक उसी किताब में दर्ज कर दी गई जिसकी अवराक में सदियां तहरीर थीं। मैं तारीख के किसी भी दौर में उस दौर के किसी किरदार का रूप धार कर उस दौर की तारीख को जान सकता था। पत्थर की यह किताब अपने अंदर सदियां जिंदा रखे हुए थी। उस दौर की कशका और उससे पहले दौर की करोती मेरा हाथ पकड़कर चल पड़ी, और उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। कुछ परेशान हो करोती, मैंने कहा। हाँ, क्यों, मुझे बताओ। वो कुबरा मेरे लिए दर्द सर बन गया है। हत्यारे को मौत भी कबूल नहीं करती, वरना मैं उसे कभी कब मौत की नींद सुला देती। क्या वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। कैसे? वो महाराज से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करा सकता है। महाराज तुम्हें कैदी बनाकर कैद खाने में डाल सकते हैं। तुम्हें तारीख का चोर कहकर सदियों की सजा दी जा सकती है। ये सुनकर मेरे अवसान खता हो गए। मैंने घुटी घुटी आवाज में कहा, गोया फिर मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकता, कभी नहीं। अरे बाप रे, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। कितना भयानक तसव्वुर था। अपनी दुनिया को छोड़कर मैं इस कदीम दौर का कैदी बन जाऊंगा, और वो भी किसी और शख्सियत की हैसियत से। कुछ वक्त के लिए ये माहौल बहुत अच्छा लगा। अभी तक सही मायने में गौर नहीं किया था कि मैं खुद किस हैसियत से हूँ, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि अपनी दुनिया किस कदर खूबसूरत है, और मैं वो सब कुछ छोड़कर यहाँ कैद खाने में पड़ा रहूं, और वो भी न जाने कब तक। करोती ने मेरा चेहरा देखा और मुस्कुरा दी। वो गौतम बंसाली है, मंदिरों में घंटा बजाने वाला एक गुलाम, जिसका दावा है कि वह मेरे इश्क में गिरफ्तार है। लेकिन क्या वो इस काबिल है कि मैं उसकी मोहब्बत को कबूल किया जा सके? मुझे देखो और उसकी मनहूस सूरत को देखो, और मैं उससे ज्यादा चालाक। बेशक उसने अमृत जल पी लिया है और अमर हो गया है, लेकिन मेरा ज्ञान उससे कहीं ज्यादा है। मैंने जितने इल्म सीखे हैं वो लाजवाब हैं, जबकि उसके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि वो मेरी शक्ति को नीचा दिखा सके। मुमकिन ही नहीं। उसके लिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो ज़ीशान अली, मैं तुम्हें तुम्हारे संसार में पहुंचा दूंगी। बस मेरा ये ख्याल था कि तुम महाभारत के कुछ और मंदिर अपनी आंखों से देखो, ये जानो कि शरदा पर क्या बीती। मगर अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है। शरदा की बात की कहानी कभी बाद में तुम्हें सुना दूंगी। इस समय यहाँ से निकल जाना जरूरी है, क्योंकि गौतम बंसाली रकाबत का शिकार होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुल गया है। बल्कि करोती कहते कहते खामोश हो गई। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखता रहा। मैंने फिर कहा, बल्कि इससे आगे तुम कुछ और कहना चाहती थी करोती? नहीं, इस दौर में कशका थी, मुझे कशका ही कहकर पुकारो। करोती कहोगे तो सूरत हाल बड़ी गंभीर हो जाएगी। मैं कह रहा था कि तुम कुछ कहते कहते रुक गई थी कशका। हाँ, मैं ये कह रही थी, मुझे क्षमा कर देना। ये कहानी हमें यहीं अधूरी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हारा वापस जाना बड़ा ज़रूरी है। हाँ, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, मैंने कहा, और करोती खामोश हो गई। हम दोनों पैदल चल रहे थे। करोती ने कई बार पलट कर देखा। गौतम बंसाली अब आसपास कहीं भी मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने ये महसूस कर लिया था कि हम रास्ते पर नहीं जा रहे जिस रास्ते से यहाँ तक पहुँचे थे। कम से कम इसका मुझे अंदाज़ा था। चुनाचा ये सफ़र जारी रहा, और सूरज पूरी तरह आसमान पर खिल उठा, और धूप ने ज़मीन को सूरज ही की तरह रोशन कर दिया। तब हमें दूर से एक हिंदवाना तर्ज की बनी हुई इमारत नजर आई, जो कोई पुराना खंडर थी। उसकी दीवारें काई से स्याह हो गई थी, और जगह जगह टूट फूट के आसार नजर आ रहे थे। ये किला वर्मावती है, अपने दौर का मशहूर किला, जहां राजा धर्मदास ने 150 साल हुकूमत की। इतनी लंबी हुकूमत इससे पहले हिंदुस्तान के किसी राजा ने नहीं की थी। मगर अब ये वीरान पड़ा हुआ है, और बहुत अरसे से मेरा मस्कन है। तुम्हारा? मैंने हैरत से कहा, तो कशका मुस्कुरा दी। फिर बोली, तो तुम क्या समझते हो? क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो? नहीं पत्रकार, कुछ भी नहीं मालूम तुम्हें।
तुम्हारा जीवन तो बहुत छोटा सा है, बिल्कुल इतना सा। और उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया, और उस छोटे से जीवन में तुमने देखा ही क्या है। ये बातें करते हुए हम उस पुराने किले तक पहुंच गए और मैंने बिल्कुल एक नई तर्ज तामीर का जायजा लिया। कदीम दौर में इमारतें ऐसे बनाई जाती थी। मैंने दिल में सोचा। हम एक टूटे दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। हर तरफ वीरानी का राज था। छतों के नीचे तक सब्जा उग आया था। हवाओं की नमी ने पत्थर की जमीन को भी नरम कर दिया था। कशका मुझे साथ लिए हुए चलती रही। काफी लंबी राहदारियों को अबूर करने के बाद आखिरकार हम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जो कभी लकड़ी का होगा, लेकिन अब दीमक ने उसे मिट्टी का बना दिया था। कशका ने उस दरवाजे पर हाथ रखा और दरवाजा राख की तरह ढह गया और हम उस राख से गुजरते हुए आगे बढ़ गए। एक बड़ा सा हाल नुमा कमरा था जिसमें एक और छोटा सा दरवाजा बना था। चलो अंदर चलो, कशका बोली और मैंने उस दरवाजे से अंदर कदम रख दिया। मुझे उस पर एतमाद था। वो मेरी मौसन भी थी, मुहाफ़िज़ भी, और उसने मुझे जिस माहौल और जिस दौर से रोशनास कराया था वो बेशक एक तिलस्मी अमल था। जदीद दौर का कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता कि वो दुनिया की इस कदर कदीम तारीख में दाखिल हो सकता है। मुझे यूँ लग रहा था जैसे मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा नेक काम किया हो जिसके बदले में मुझे एक ऐसा करदार मिल गया। वो मेरी काविशों में मुआवन हो सकता था और मुझे चौंका खुद भी। हिंदू माइथोलॉजी से बहुत दिलचस्पी थी और मैंने उस पर हत्तल मकदूर किताबें लिखी थीं, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा उस दौर का एक करदार बनकर उसका एक लफ्ज़ भी मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा था। वो तो दुनिया तो बिल्कुल ही अनोखी थी। लेकिन अब अगर मैं उसमें ऐसी कोई किताब लिखना चाहता तो दुनिया तो मेरी बात पर कभी यकीन ना करती कि मैंने गुज़री सदियां अपनी आंखों से देखी हैं। वो करदार अपनी निगाहों से देखे हैं जो सिर्फ तारीख़ में नज़र आ जाते हैं, और वो भी हिंदू तारीख़ में। मैंने महाभारत देखी, वो जंग देखी जो कौरवों और पांडवों के दरमियान हुई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस दौर का कोई लिखारी ऐसी कोई किताब लिख सकता है जिसमें वो आंखों देखी जंगों का हाल लिख सके। मैंने 3 सीढ़ियाँ अबूर करके पीछे देखा। कुरोती पहली सीढ़ी पर थी और उसने कहा चढ़ते रहो, और मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। लेकिन ये सीढ़ियाँ थीं कि क़यामत अल अमान अल हफीज़ चढ़ती ही चली जा रही थी और मैं चढ़ता रहा। 2-3 बार मैंने कुरोती को देखा, वो मेरे पीछे आ रही थी। मैं रास्ता अबूर करता रहा। मुझे यूँ लग रहा था जैसे ये सीढ़ियाँ आसमान तक जा रही हों। खुदा की पनाह, कोई आधे घंटे तक मैं मुसलसल सीढ़ियाँ अबूर करता रहा और मेरे पाँव जवाब देने लगे। रानों की मछलियाँ सख्त हो गईं और अब एक एक सीढ़ी चढ़ना मुश्किल लगने लगा। मैंने थकी थकी आवाज़ में पूछा, मुझे कितना ऊपर जाना पड़ेगा कुरोती? लेकिन कुरोती ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ, क्या मैं कुछ देर बैठ सकता हूँ? ये कहकर मैंने पलट कर देखा, लेकिन जहाँ तक मेरी निगाह गई वहाँ कुरोती का कोई नामो निशान नहीं था। मेरा दिल धक से हो गया। क्या वो नीचे ही रह गई? क्या वो वापस चली गई अपनी तारीख में? तो अब मैं क्या करूं? ऊपर की सीढ़ियां अबूर करूं या नीचे जाकर कुरोती को तलाश करूं? अजीब सी कशमकश का शिकार हुआ और सीढ़ी पर बैठ गया। बैठे बैठे ख्याल आया तो मैंने चीख चीख कर कुरोती को आवाज़ें देना शुरू कर दी। मुझे बताओ, तुम मेरी काबिल एतमाद दोस्त हो कुरोती, मुझे इस तरह तनहा मत छोड़ो। खुदा के लिए मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? पीछे आता हूं तो यह हज़ारों सीढ़ियां तय करना भी मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। ऊपर जाता हूं तो पता नहीं कि कितनी तवालत इख्तियार करनी पड़ेगी। मुझे ख्याल आया कि कुरोती ने मुझे बताया था कि अगर महाराजा को मेरे बारे में इल्म हो गया कि मैं तारीख़ का चोर हूं और जदीद दौर के लिए तारीख़ चुराने आया हूं तो मुझे कैद में डाल देगा, और फिर वही कैद मेरी ज़िंदगी का आखिर होगी या भी नहीं, कौन जाने। कोई 1 घंटा अपने हिसाब में वहीं बैठा रहा। कुरोती का अब कोई नामो निशान नहीं था। वो मुझे छोड़ गई थी। ऐसा ही था और मुझे ऊपर जाना चाहिए, देखूं ऊपर क्या होता है और उन सीढ़ियों का अख्ताम कहाँ होता है। मैं चढ़ता रहा और आखिरकार मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां मुझे एक छत सी नज़र आई। मुझे हैरत हुई, लेकिन ये चंद सीढ़ियां और अबूर करनी थी। चुनाचा मैं चढ़कर ऊपर पहुंच गया
اور پھر میں نے وہ حیران کن منظر دیکھا جو میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں پتھر کی وہ کتاب رکھی ہوئی تھی، عظیم الشان کتاب، اور میں اس کتاب کی آخری سطح پر تھا اور اس پر لفظ ابھرے ہوئے تھے۔ جہاں میں کھڑا تھا وہ ایک خانہ سا کھلا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گھبرا کر پھوٹی سے اس سوراخ سے باہر نکل آیا، اور اس احساس کے ساتھ کہ کہیں دوبارہ میں اس سوراخ سے نیچے نہ گر پڑوں، ایک چھوٹی سی چھلانگ لگا کر دوسری جگہ آ کھڑا ہوا۔ وہ خانہ خود بخود بند ہو گیا تھا، اور میں نے ان الفاظ کو دیکھا جو اس پر لکھے ہوئے تھے، حالانکہ شاید الفاظ سنسکرت میں لکھے تھے، لیکن میں جب مہا بھارت میں راج لیکھک کے حیثیت سے داخل ہوا تھا تو میں نے وہاں سنسکرت میں لکھی کتاب بھی پڑھی تھی، اور جس کے بارے میں مجھے پتہ چلا تھا کہ میں نے ہی لکھی ہے، اور اس وقت سنسکرت کے وہ الفاظ میری نگاہوں کے سامنے تھے جنہیں میں پڑھ سکتا تھا، اور ان پر لکھا تھا مہا بھارت۔ میں خاموشی سے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دل میں یہی خیال تھا کہ شاید کروتی بھی اس سوراخ سے باہر آئے، ہو سکتا ہے کہ اسے آنے میں دیر ہوئی ہو، لیکن دیر ہو گئی۔ وہ خانہ دوبارہ نہ کھلا۔ خود میرا اس پر پاؤں رکھتے ہوئے خوف سے برا حال تھا کہ کہیں دوبارہ نیچے نہ جا پڑوں۔ جب مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ کروتی اس طرح باہر نہیں آئے گی تو میں نے بچ بچ کر قدم اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے اس دوسرے الفاظ پر بھی غور نہیں کیا تھا جو پتھر کی تراش سے بنے ہوئے تھے اور ابھرے ہوئے تھے، بالکل مہا بھارت کی طرح، اور میں ان سب سے بچتا بچاتا سیڑھیاں اتر کر کتاب سے نیچے آ گیا، اور پھر احمقوں کی طرح میں نے 3-4 بار زور سے آواز لگائی، کروتی کروتی، اگر تم اس عمارت میں موجود ہو تو میرے پاس آؤ، میں سخت پریشان ہوں، میں بے چین ہوں، کروتی میرے پاس آؤ۔ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ میں مایوسی سے آگے بڑھ گیا اور اس کے بعد اس عمارت کے صدر گیٹ سے بھی باہر آ گیا۔ عمارت میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، وہ سنسان پڑی تھی اور بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ کیسی عجیب جگہ ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد میں واپس اپنے گھر آ گیا، میرا گھر، میرا دیس، میرا سب کچھ۔ لیکن جہاں پہنچ گیا تھا وہ جگہ بہت عجیب تھی۔ کئی گھنٹے تک اپنے مسحری پر دراز آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ دل چاہ رہا تھا کہ نیند آ جائے، دماغ تھوڑا سا پرسکون ہو جائے، لیکن ان خیالات میں بھلا نیند کہاں سے آتی؟ سوچتا رہا، بہت کچھ سوچتا رہا، اور بہت سے کردار یاد آئے۔ سجنی، وہ محفل جس میں مجھے راج لیکھک کی حیثیت سے بلایا گیا تھا، کتنا عجیب ہے اس دور کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ تاریخی کہانیاں لکھنے والا ایک ادیب اس طرح تاریخ میں گر پڑا تو وہ لوگ کہکے لگانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے۔ یہی کہیں گے کہ زیادہ سوچتے ہوئے بیچارہ دماغی مریض بن گیا، اب ایسی فضول باتیں نہیں کرے گا تو اور کیا کر سکتا ہے۔